Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The French Hub. In today's video we'll start with chapter number 8 of Enchante 4. Chapter number 8 है Vincent va organiser une fête, means Vincent is going to organize a party. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, इन टेक्स्ट पार्ट को कवर करेंगे एंड साथ के साथ ग्रामर पार्ट को भी हम कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट बाय रीडिंग फ्रॉम हियर. Aujourd'hui c'est samedi. Aujourd'hui c'est samedi. Tout le monde se repose, means today it is Saturday. Everybody is resting in their house. Vincent a une idée, means Vincent has an idea. Il va demander à ses amis de venir chez lui ce soir pour une fête, means he is going to demand to his friends to come to his house this evening for a party. Mais tout d'abord, but first of all, il va chercher Alexandre qui va aider Vincent pour organiser cet événement. First of all, he is going to search Alexander who is going to help Vincent for organizing this event. ठीक है, फिर हमारा Alexander आता है, वो कहता है salut, qu'est-ce que nous faisons alors, means hello, what we are going to do now. Vincent कहता है pour commencer on va inviter nos amis chez moi, means for beginning we are going to invite our friends at my house. Après, on va acheter de la nourriture, means then after that we are going to buy some food. Il faut aller chez Amélie pour emprunter the disc. फिर हमारा जो Alexander जो उसका हेल्प करवा रहा है बंदा, वो कहता है but it is necessary to go to Emily's house for borrowing the discs. You can say disc or CDs, DVDs, anything. फिर विंसेंट कहता है alors on va tout de suite. So we are going there right now. Tout de suite means right now. Chez Amélie means at Emily's house. Amélie, salut les gars means hello guys. Gar क्या होता है? Guys. ठीक है. विंसेंट कहता है salut Amélie, nous allons organiser une fête chez moi ce soir, means hello Amélie, we are going to organize a party at my house this evening. Viens avec ton frère means come with your brother. Emily कहती है je vais venir avec mon frère. Merci means I will come. I'm going to come with my brother. I will come with my brother. Thank you. Then Alexander कहता है as-tu the disc means do you have CDs or DVDs. Emily कहती है oui bien sûr means yes of course. Je vais te donner des disques means I'm going to give you some CDs. Ils sont super. They are superb. फिर Alexander and Vincent साथ में कहते हैं merci Emily means thank you Emily. फिर हमारा नेक्स्ट सिनेरियो दिया जाता है यहाँ पर, जो कि है quelques minutes après means some minutes after some minutes. Alexandra and Vincent arrive au supermarché. Alexander and Vincent arrives in the supermarket. Alexander कहता है dépêche-toi means hurry up, il est déjà midi, it is already afternoon. Nous devons acheter les boissons et les burgers means we have to also buy the drinks and burgers. Oui, je sais. Vincent कहता है oui, yes, I know. Je vais tout acheter pour la soirée means I'm going to buy them all for the evening party. सोirée क्या होता है? Evening party. ठीक है, फिर इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है. सबसे पहला क्वेश्चन है की वा ऑर्गेनाइजे यून फेट मीन्स हु इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज अ पार्टी. सो विंसेंट. ठीक है, किसको दुआ फेयर pour commencer means what they have to do for beginning. So they are going for the beginning they are going to invite their friends at their house. So this is the answer of this. सी पार्ट कहता है किसका विंसेंट व आश्ते ओ सुपरमार्शे मीन्स व्हाट विंसेंट इज गोइंग टू बाय इन द सुपरमार्केट. तो यहाँ पर हमने देखा एट द सुपरमार्केट में हमने देखा था दे आर गोइंग टू परचेज बुआसो मीन्स ड्रिंक्स एंड सम बर्गर्स. ओके, फिर हमारा यहाँ पर इंटेक्स्ट पार्ट फिनिश हो जाता है. जो हमारा ग्रामर पार्ट है ना उस पर हम लोग आते हैं. सो हमारा ग्रामर पार्ट है ल फ्यूचर प्रोश. सो देखो, अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, लाइक मैंने अगर सॉरी आई सेड अ सेंटेंस आई एम गोइंग टू वॉच टेलीविजन. तो देखो इसमें क्या हुआ, इसके अंदर हमने क्या इंडिकेट करा कि ये वाला एक्शन जो अभी मैंने कहा कि टीवी देखना है, तो ये वाला एक्शन अभी फ्यूचर में थोड़ी देर में क्या होने वाला है, परफॉर्म होने वाला है. ठीक है, तो ऐसे टेंस को जिसके अंदर टेंस जो टेंस इंडिकेट करता है नियर फ्यूचर को, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर और इन अ शॉर्ट वाइल. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर प्रोश बोलते हैं. अगर मैं ऐसे टाइप के सेंटेंसेस की बात करती हूँ, आई एम गोइंग टू वॉच टेलीविजन. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या करा,
गोइंग, गोइंग मीन्स आले वर्ब का यूज़ करा, मीन्स टू गो वर्ब का यूज़ करा, एंड साथ में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस जो हमारी मेन वर्ब होती है उसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म बोलते हैं वर्ब की, ठीक है। तो ये हमने यूज़ करा। अब फ्यूचर प्रोच हमारा ऐसे भी हो सकता है, एंड एक कैटेगरी वो होती है जिसमें हम विल, आई विल वॉच टीवी, ठीक है। तो ये वाला भी हमारा फ्यूचर प्रोच होता है। इस वाले चैप्टर के अंदर हम ये वाला आई एम गोइंग टू वॉच टेलीविजन, ये वाला फ्यूचर प्रोच देखेंगे। नेक्स्ट वाले चैप्टर में जो हमारा विल वाला होता है ना, विल वाला फंडा, वो हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? हमारा सबसे पहले लगता है सब्जेक्ट, फिर लगती है हमारी आले वर्ब की कॉन्जुगेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट विच इज़ कॉन्जुगेटेड इन प्रेजेंट, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर हमारी लगती है वर्ब, इन्फिनेटिव फॉर्म मीन्स ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ यूए वर्ब का, यूए वर्ब का हमारा मीनिंग होता है टू प्ले, ठीक है। तो ये हमारी क्या है? इन्फिनेटिव फॉर्म है वर्ब की। सो हमारी इन्फिनेटिव में कौन सी वर्ब लगेगी? जो हमारी मेन वर्ब होती है, जिसके पीछे उसकी एंडिंग ई आर, आई आर या आर ई वो लगी होती है, वो वाली वर्ब हमारी यहाँ पर लगेगी, ठीक है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। कैसे? अगर मैं सॉरी, देखो क्या करा, सबसे पहले लगा यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वो आर वर्ब हमारी कॉन्जुगेट हुई अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, फिर हमारी आई वर्ब विद इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव फॉर्म वाली वर्ब, फिर हमारा आ गया क्या? ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। जो हमारी आले वर्ब है, आई होप उनकी कॉन्जुगेशन आपको याद होगी, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि ज वे त्यू वा इल वा एल्वा नूजालो वूजाले इल वो एल वो, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। लेट अस सी एन एग्जाम्पल ऑफ लव फ्यूचर प्रोच विद द वर्ब कॉन्ड्यूर विच मीन्स टू ड्राइव। अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू ड्राइव, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले ज, फिर आएगा हमारी अवुआर वर्ब की, सॉरी दैट आले वर्ब की कॉन्जुगेशन, एंड देन हमारी इन्फिनेटिव एज इट इज। je vais conduire मीन्स आई एम गोइंग टू ड्राइव, tu vas conduire means you are going to drive, il va conduire he is going to drive, elle va conduire she is going to drive, nous allons conduire means we are going to drive, vous allez conduire means you are going to drive, ils vont conduire means they are going to drive, elle va conduire means they are going to drive, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल हमारा दे रखा है फ्यूचर प्रोज का विद प्रोनोमिनल वर्ब सलावे विच मीन्स टू टेक अ बाथ। तो प्रोनोमिनल वर्ब्स में कैसे फॉर्मेशन होती है? सबसे पहले लगता है हमारा सब्जेक्ट, फिर आले वर्ब, फिर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो म त स नु वू स होते हैं वो लगता है, फिर लगती है हमारी इन्फिनेटिव। सो य वे म लावे, ये हमारी क्या बन गई? फ्यूचर प्रोज ऑफ प्रोनोमिनल वर्ब, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है टू फॉर्म द नेगेटिव इन फ्यूचर प्रोच। फ्यूचर प्रोच में अगर मेरे को नेगेटिव फॉर्म करना है तो जो हमारी आले वर्ब होती है ना, उसको हम न और पा के बीच में जो है पुट कर देते हैं, ठीक है। सो ऐसे हमारा फ्यूचर प्रोच बनता है नेगेटिव के केस में, ठीक है। आई होप सारी चीज़ क्लियर हो गई होंगी। कंसेप्ट छोटा ही था इस हफ्ते के अंदर। अब जो हमारी एक्सरसाइज है उस पर हम लोग आ जाते हैं। अब जैसे कि हमारे पास सेंटेंस दे रखा है त्यू टेलीफोन मेंटेनो मीन्स यू आर गोइंग टू टेलीफोन नाउ, वी je vais téléphoner। तो हमने इस वाली वर्ब का जो हमारी क्वेश्चन में दे रखी थी उसका हमने यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी वर्ब दे रखी है déjeuner। सो यहाँ पर आप लोग लिखोगे ज के साथ आले की कॉन्जुगेशन je vais एंड déjeuner का इन्फिनेटिव विच इज़ यार, ऐसे ऐसे आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में देखो, वर्ब क्या है हमारी? पार हमारी का इन्फिनेटिव क्या होता है? पारतीर। सो पारतीर हमारा सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर इल है, इल के साथ आले वर्ब कैसे कौन सी होती है? वी ए, इल वा पारतीर, वी इल वा पारतीर दो ऑंस्तो। तो ऐसे हमारा ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन होगा। सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन कहता है कंप्लीट विद द वर्ब्स इन द फ्यूचर प्रोश। Alors Philippe, qu'est-ce que tu dash pendant les vacances? तो यहाँ पर हमारी क्या ले रखी है? फेयर वर्ब ले रखी है, तो ट्यू के साथ आले को यूज़ करेंगे एंड देन फेयर वर्ब को एज इट इज़। फिर यहाँ पर हमारी जो सब्जेक्ट है, जो के साथ आले वर्ब की कॉन्जुगेशन लगाएंगे, फिर आले वर्ब दोबारा से यहाँ पर दे रखी है je vais aller chez mon oncle à Bordeaux et toi, ठीक है। ऐसे हमारा लग जाएगा। बेशक हमारी आले वर्ब दे रखी है, बट पहले हमारी आले वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे, फिर आले इन्फिनेटिव की फॉर्म में ये वाली एज इट इज़ यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना।
फिर थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, वी हैव टू डू अगेन विद द इन्फिनिट फ्यूचर प्रोच में कन्वर्ट करना है। तो ये वाला देखो एग्जाम्पल, ज वे एंड अंतराजे एज इट इज़, ठीक है। तो सिंपल है ये वाला क्वेश्चन भी, ये वाला भी ट्राई कर लेना। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है एक्रीवे लेबो न्यूमेरो। सबसे पहला है नूस आलो फेर दे कूर, मीन्स वी आर गोइंग टू डी शॉपिंग। तो देखो शॉपिंग कौन से वाले जाने लग रहे हैं, सेकंड नंबर पे, तो यहाँ पर आएगा 2। फिर बी पार्ट में एल्व फेर से दबुआर, मीन शी इज़ गोइंग टू डू हर होमवर्क। तो होमवर्क कौन से में करिए, फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर आएगा हमारा फर्स्ट। Then je vais faire une promenade means I'm going to do a walk. So this is gonna be fourth. And then last, je vais faire les vaisselle. La vaisselle means I'm going to do the dishes, means dishes को धोऊंगी. This is gonna be third number. ठीक है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास दे रखा है you have to respond to the question by using the future proche. जैसे कि est-ce que tu vas aller au cinéma ce weekend? तो आप लोगों को कहना है oui. Je vais aller au cinéma ce week-end. Les étudiants vont étudier ce soir. Oui, les étudiants vont étudier ce soir. Le prof, est-ce qu'il va voyager en France cet été? Oui, le prof va voyager en France cet été. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना आगे वाले पार्ट्स। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में कहता है mettez ces phrases au future proche. Vous ne vous amusez pas. तो हमने देखा था कि नेगेटिव कैसे हमारा जो होता है वो कैसे होता है, आले वर्ब जो होती है उसके आगे नेगेटिव एंड आले वर्ब के बाद जो हमारा पा है वो लगता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा, वो के साथ आले की कॉन्जुगेशन होती है आले, वो नाले पा, अम्यूजे की इन्फिनेटिव, वो नाले पा अम्यूजे। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। फिर है इल न पार्थ पा। तो पार्थ कौन से वर्ब का कौन सी वर्ब की कॉन्जुगेशन थी, पार्थीर की। तो सबसे पहले मैं इल सब्जेक्ट लगाऊंगी, फिर हमारा नेगेटिव दे रखा है तो न लगा दूंगी, फिर इसके साथ अवुआर की कॉन्जुगेशन, सॉरी आले की कॉन्जुगेशन, फिर पा एंड देन पार्थीर इन्फिनेटिव एज इट इज़। इल न वो पा पार्थीर। तो यही हो जाएगा हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट सेकंड क्वेश्चन है मतलब वेब ऑफ फ्यूचर प्रोस। ये भी सेम क्वेश्चन है, आप लोगों को इसको आले वर्ब की कॉन्जुगेशन, फिर ये वर्ब एज इट इज़, आले वर्ब की कॉन्जुगेशन, फिर वर्ब एज इट इज़। एंड यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो मैंने आप लोगों को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस में फॉर्मेशन दिखाई थी कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आले वर्ब, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड देन दी प्रोनोमिनल वर्ब का जो हमारा इन्फिनेटिव है वो, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन इट इज़ ऑफ लिसनिंग, जो कि इट इज़ गोना बी इन योर स्कूल ओनली। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाय स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर।